Yeah, hi everyone. I hope your studies are going good. In this video, I would be discussing about 75-day strategy for IAS Mains 2025. As we all know that this year मेंस के लिए यूपीएससी ने काफ़ी कम टाइम दिया है and now aspirants who will use their 75 days effectively, they are going to win the mains race. And that's why it becomes quite important that you know what are the do's, don'ts, and daily wins for your IS Men's 2025. And in this video, I would be providing you phase-wise plan, which would give you a clear understanding and it will integrate your essay, ethics, GS 123 as well as optional preparation alongside answer writing. So let's start this video. In this video, you would gain speed, confidence, and the ability of strategic execution. But before coming to the main topic, if you want full PDF of this video, then you can download it from my Telegram channel. And if you want exclusive resources, then you can download them from my website. I have created free resources for prelims, mains, optional as well as interview, which you are definitely going to like and they are going to help you a lot. So you can check them out in the comment section. There I have given their links. Now, why these 75 days are crucial? These 75 days are crucial because अगर इन 75 डेज में आपने अच्छे से 110% देकर मेहनत कर ली तो आपको बहुत अच्छी रैंक मिलने वाली है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज वी नेवर नो इंटरव्यू में हमें कितने मार्क्स मिलेंगे बट मेंस इज इन आवर हैंड. ठीक है. एंड जो आपका इंटरव्यू है उस पर भी आपका प्रेशर कम हो जाएगा. यू विल नॉट बी वरीड अबाउट योर इंटरव्यू मार्क्स अलॉट इफ यू आर गोइंग टू स्कोर क्वाइट हाई इन मेंस. दैट इज द पावर ऑफ मेंस. It will help you get through this exam in your first attempt and it will help you get a high rank also. तो इस फेज के दौरान यू नीड नॉट टू फोकस ऑन कलेक्टिंग मोर कंटेंट. यहाँ पे ये गलती मैंने एस्पायरेंट डू दैट बट यू नीड नॉट टू फोकस ऑन कलेक्टिंग कंटेंट. आपको फोकस करना है रिफाइनिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड राइटिंग लाइक अ रैंकर. योर फोकस नाउ शुड शिफ्ट टुवर्ड्स स्पीड एंड स्ट्रक्चर. कैसे कितने अच्छे से आप आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हो एंड हाउ like with how much speed you are finishing your answers. साथ ही you should focus on creating short notes and revision. And if you don't have short notes, I would be providing solution of that as well in the further video. So alongside this, you should also focus on optional mastery. This is the most important thing, as well as essay power. If you write good essays, then you can score very high marks and that would help you get a rank. And the most important thing is confidence under pressure. क्योंकि प्रीलिम्स इज अ वन डे एग्जाम बट जो मेंस है उसमें आपका ऐसे पेपर होगा, देन नेक्स्ट डे जीएस 1 एंड 2 एंड आफ्टर दैट जीएस 3 एंड 4 एंड उसके बाद में फिर ऑप्शनल. देर इज अ रेगुलर प्रेशर ऑफ लॉन्ग आवर एग्जाम. तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना आना चाहिए अंडर द प्रेशर. नाउ फाउंडेशन फेज रहेगा फर्स्ट फेज विच वुड बी योर फर्स्ट 5 days. यहाँ पे आपको सिस्टम सेटअप करना है. एक बेसिक आपको यू नीड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड जीएस टॉपिक वाइज चेकलिस्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके अभी भी वीक हैं, विच टॉपिक्स आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. देन यू नीड टू क्रिएट अ ऑप्शनल स्ट्रेटेजी. एक सिलेबस ट्रैकर आपको बनाना है. इन माई मेंटोरशिप प्रोग्राम आई प्रोवाइड ऑप्शनल सिलेबस ट्रैकर which helps students identify topics which they have done which are pending. तो उससे that would give you a bird's eye view of your syllabus, where you are in your syllabus, how much time it will take to finish your syllabus. So you can also create a syllabus tracker and also you should prepare an answer writing plan. Although I would be giving you an idea in this video itself, then you should create a register where you can write down ready-made intros, conclusion, data points. आपको ये ready-made intros, newspaper, PYQ model answer, mock test model answer, बुक्स इन सब में मिल सकते हैं. तो वहां से आपको नोट डाउन करने हैं, स्पेशली फॉर रिपीटिंग टॉपिक्स विच आर गिवन इन द सिलेबस लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजास्टर मैनेजमेंट. देन यू नीड टू क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड इंटीग्रेट योर टेस्ट शेड्यूल विद दैट. एंड ऑल्सो यू शुड प्लान फॉर बैकअप्स लाइक यू नीड टू गिव 1 or 2 बफर डेज. काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, दे क्रिएट अ परफेक्ट प्लान विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो एंड दे डोंट इंटीग्रेट टेस्ट एंड बफर डेज इन दैट एंड देन दे फील stressed once they are not running as per that plan. So you need to build a realistic plan. And you should also create a 15 to 20 ऐसे themes जिनको आपको पीवाईक्यू के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है. उनके इंट्रोज, एनेक्डोट्स, क्योट बैंक्स, यू नीड टू क्रिएट दैट. क्या नहीं करना है, कोई भी नया स्टडी मटेरियल रेंडमली स्टार्ट नहीं करना है. अ लॉट ऑफ मटेरियल विल कम इन द मार्केट बट आपको पीडीएफ होर्डिंग वाले मोड में नहीं जाना है. यू नीड नॉट टू बिकम अ बुक कलेक्टर, यू आर हियर टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड आपको कॉन्स्टेंटली अपनी आंसर्स को टॉपर कॉपीज से कंपेयर नहीं करना है. यू नीड टू गो थ्रू टॉपर कॉपीज, उनसे आप गो थ्रू करो.
मल्टीपल टॉपर कॉपीज को गो थ्रू करो, देन क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है। इसके बाद में फेज 1 जो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे डे 6 से लेके 35 तक 30 डेज का ही रहेगा। तो यहाँ पे यू नीड टू फोकस ऑन फिनिशिंग कंप्लीट जीएस, ऑप्शनल एंड एसे सिलेबस। एटलीस्ट 80% तो हो जाना चाहिए। एंड हाउ इट विल हैपन, इफ यू हैव डन योर ऑप्शनल इन द पास्ट, 30 days आर सफिशिएंट टू फिनिश एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ ऑप्शनल। एसे विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। देन जहाँ तक जीएस की बात है, तो जीएस 1, 2, 3 ये वाला जो पोर्शन है, इट लार्ज एक्सटेंट इट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, यू नीड टू फोकस जस्ट ऑन जीएस 4। तो ये हो जाना चाहिए। दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट, एंड वंस यू विल डू दिस, योर कॉन्फिडेंस विल राइज एंड दैट वुड हेल्प यू इन रिमेनिंग टाइम। ओके, जो आपका बाकी के 2 फेज है उनमें आपको दैट वुड हेल्प अलॉट। अब यहाँ पे करना क्या है मेन, यू नीड टू सोल्व एटलीस्ट 1 जीएस क्वेश्चन आंसर एवरी डे एंड 2 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर ऑप्शनल डेली। और यहाँ पे क्वेश्चन कौन से लेने हैं, यू नीड टू पिक अप द पीवाईक्यूज एंड आल्सो यू नीड टू रिवाइज, मेमोराइज जीएस के वैल्यू एग्जाम्पल्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जितने भी वैल्यू एडिशन थिंग्स हैं, कीवर्ड्स, यू नीड टू गो थ्रू देम। देन वीकली बेसिस पे यू नीड टू राइट एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल एवरी संडे आपको लिखना है। जैसे आपने सपोज इफ योर ऑप्शनल इज पीएसआईआर एंड यू हैव फिनिश्ड पेपर 1 सेक्शन ए in 6 days, then give sectional test for paper 1 section है। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। क्या नहीं करना है, दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने ऑप्शनल को डिले नहीं करना है। यू नीड नॉट टू यूज लॉन्ग पैराग्राफ्स। यहाँ पे आप कीवर्ड का इस्तेमाल करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्रिस्प नोट्स बनाओ, बिकॉज एंड में आप लॉन्ग पैराग्राफ एनीवेज रिवीजन के पर्पज से यूज नहीं कर पाओगे। यू नीड नॉट टू ओनली यूज कोचिंग मॉडल आंसर्स, यू शुड आल्सो गो थ्रू पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज के टॉपिक रिपीट होते हैं, तो इफ समबडी रिमेंबर्स द पीवाईक्यू मॉडल आंसर्स, टेक्स एग्जांपल्स, कीवर्ड्स फ्रॉम देयर, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो उसको यूज़ भी कर पाएगा इन द एक्चुअल पेपर, क्योंकि वहाँ से टॉपिक रिपीट होंगे। ओवरऑल फॉर क्लैरिटी, फर्स्ट कंपोनेंट इज जीएस 1 to 4। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स देने हैं। एंड व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रिपेयर नोट्स, गो थ्रू देम, पीवाईक्यूज एंड 250 वर्ड आंसर राइटिंग। इसके लिए आप 10 मिनट ले सकते हो डेली बेसिस पे। ऑप्शनल, फॉर ऑप्शनल यू शुड डिवोट 5 to 6 आवर्स ऑन डेली बेसिस। गो फोकस ऑन रिविजन ऑफ योर ऑप्शनल एंड गिव टेस्ट एवरी वीक। ऑप्शनल का टेस्ट यू कैन स्टार्ट, एंड इफ यू कैन फिनिश योर ऑप्शनल पेपर ऑन टाइम, तो जीएस पेपर भी आपके फिनिश हो ही जाएंगे। देन ऐसे के लिए वीकली एटलीस्ट 1 ऐसे आपको लिखना है। इट विल टेक 1 hour 30 minutes, तो इतना ही टाइम लगेगा। यू नीड टू राइट 1 ऐसे एवरी वीक, लाइक यू कैन यूज संडे फॉर राइटिंग ऐसे। एंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, थीम बेसिस पे आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे फिलोसॉफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इफ यू विल गो थ्रू दी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ ऐसे विच आई प्रोवाइड इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिलोसॉफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उन फिलोसॉफिकल थीम्स पे आपको नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल कलेक्ट करने हैं, एनेक्डोट्स कलेक्ट करने हैं, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन द प्रोग्राम। आफ्टर दिस एथिक्स के लिए, बट अगर आप किसी प्रोग्राम के पार्ट भी नहीं हो, स्टिल आप एनेक्डोट्स टॉपर कॉपीज से कलेक्ट कर सकते हो। मैंने खुद ने प्रिपरेशन के दौरान टॉपर कॉपीज से एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स, क्योट्स ये कलेक्ट करे थे, एंड देन व्हाइल यू आर राइटिंग ऐसे यूज दैट। एथिक्स के लिए देखो, एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, एंड एथिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड डिवोट डेली 30 मिनट्स। जीएस जब आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार फिनिशिंग के लिए यू कैन फिनिश एथिक्स, बट ऑन डेली बेसिस यू शुड डिवोट 30 मिनट फॉर गोइंग थ्रू द थिंकर्स, क्योट्स, केस डायरीज, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है, थ्योरीज, इन सबको गो थ्रू करते रहो, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम एंड यू कैन यूज देम इन योर GS4 पेपर। So this is the plan for phase 1. After this will your phase 2 will begin. Yeah, that would start from day 36 to day 60. 25 days का ये phase 2 रहेगा. Here your focus should be on increasing speed. देखो phase 1 में you have done revision, आपका basic recap हो चुका है. Now और focus, entire focus would be on increasing speed, quality of the answer and micro revision. Micro revision का मतलब क्या? You select a topic like inclusive growth आपने select करा and you set a timer of 7 minutes, 10 minutes and then you finished it. उन माइक्रो नोट्स को आपने फिनिश कर दिया. देन ड्यूरिंग दिस टाइम यू आल्सो नीड टू राइट डेली 2 GS आंसर्स, 10 मिनट पर क्वेश्चन. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 15 मार्कर, तो उसके लिए आप 10 मिनट लो. डेली 2 15 मार्कर GS क्वेश्चंस लिखो विद इन 10 मिनट्स, सेट अ टाइमर एंड राइट देम इन द 10 मिनट्स. सेम इज द केस विद ऑप्शनल, डेली 3 PYQ आंसर्स आपको लिखने हैं. एंड हियर यू कैन आल्सो यूज रिवर्स सोल मेथड. लाइक व्हाट यू कैन डू, पिक 3 PYQs, राइट देयर आंसर्स एंड देन कंपेयर योर आंसर्स विद द मॉडल आंसर्स. ठीक है, दैट वुड बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. द सेम कैन बी यूज्ड फॉर योर GS आंसर्स. ऐसे के लिए व्हाट यू नीड टू डू ऐसे प्रैक्टिस. एक फुल लेंथ टेस्ट अब आपको एवरी 3-4 डेज में देना है. इसके साथ में नोट्स का रिवीजन आपको करना है. 20 मिनट साइकिल पर GS थीम.
जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उस पर आप 20 मिनट का साइकिल सेट करके यू कैन गो थ्रू इंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट नोट्स और 1 आवर साइकिल फॉर योर जीएस पे गवर्नेंस पोर्शन। ओके, हियर डूज क्या है? डूज ये हैं, आपको जीएस वाइज माइक्रो नोट्स शीट्स अब बनानी है। यू नीड टू इंक्लूड डायग्राम, थिंकर्स, डेटा एंड अगर नहीं है तो यू कैन यूज प्रहार समरी नोट्स। उनमें दे हैव क्रिएटेड समरी नोट्स फॉर entire GS portion. तो that would act as your micro note sheet and go through it multiple times. केस स्टडी बैंक आप बना सकते हो। केस स्टडी में कौन से डायलेमास, स्टेक होल्डर, रिकमेंडेशन, कोर्स ऑफ एक्शन, जस्टिफिकेशन, थ्योरीज जो भी आप यूज करोगे, एंड यू कैन यू क्रिएट दिस डेटा बैंक फ्रॉम दी PYQ मॉडल आंसर्स ऑफ केस स्टडीज। देन 10-10-10 रूल भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। लाइक आप आइदर यू कैन राइट 10 इंट्रोज, बॉडी एंड कंक्लूजन, और यू कैन रीड 10 इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। उनमें से जो आपको अच्छे लगे यू कैन write them down in your register where we are collecting intro, body, conclusion, especially intro and conclusion of important PYQ themes. देन मैप्स आपको कलेक्ट करने हैं GS1 के लिए, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी पार्ट एंड हिस्ट्री में भी आप काफ़ी सारी जगह मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देन फ्लो चार्ट्स फॉर GS1, GS2 एंड 3, लाइक सोशल ऑडिट है उसका क्या साइकिल होता है, ठीक है, उसके लिए आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या साइकिल होता है उसके लिए फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो। कीवर्ड्स कलेक्शन होना चाहिए आपके पास फॉर GS4, बिकॉज GS4 एथिक्स में कीवर्ड्स मैटर अलॉट। दे शो दैट यू हैव अ एथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर कीवर्ड्स। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स याद करने हैं। क्या नहीं करना है? अगेन लॉन्ग सेंटेंसेस पे फोकस नहीं करना है। विजुअल रिकॉल, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, कीवर्ड्स, इन पे फोकस करना है। ऐसे प्रिपरेशन को पोस्टपोन नहीं करना है। दैट वुड बी योर स्कोरिंग एज एंड यू नीड नॉट टू स्टक विद वन टॉपिक। अगर आपको लग रहा है किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, देन लीव इट। यू डोंट हैव मच टाइम एंड ऑलवेज यूज टाइमर्स। जैसे अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज इट इज योर नोट्स आर ऑफ 2 पेजेस फॉर दैट टॉपिक, तो उसके लिए आप 10 मिनट का टाइमर सेट करो एंड रीड लाइक दैट। दैट वुड हेल्प यू फिनिश योर सिलेबस इन अ फास्टर वे। Then phase 3 will come. In phase 3, especially the last 15 days, our focus should be like visualizing things, mentally rehearsing the एग्जाम होल माइंडसेट, क्योंकि अब आपका एग्जाम काफी ज्यादा पास आ रहा है। योर रिविजन लूप शुड लुक लाइक ऑप्शनल फर्स्ट, देन ऐसे GS4 एंड देन फाइनली GS1, 2, 3। इस साइकिल में आपको अपना रिविजन करना है, बिकॉज ऑप्शनल का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके मेंस के मार्क्स में। देन ऐसे एंड GS4 एंड देन फाइनली GS1, 2, 3। पेपर कंप्लीशन पे आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज आप डेली 2 GS एंड 3 PYQs ऑफ ऑप्शनल आप लिख रहे थे, तो डेली 5 क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे थे, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ गई होगी। तो नाउ यू नीड टू सिमुलेट एग्जैक्ट पेपर टाइमिंग, ताकि आपको पता रहे यू विल बी एबल टू फिनिश योर पेपर। ऑल दो इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे इन एवरी मेंस आई हैव फिनिश्ड एवरी पेपर फ्रॉम GS1, 2, 3, 4 ऑप्शनल टू ऐसे बिफोर 3 आवर्स। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करी थी, साइंटिफिक टेक्निक्स है। इफ़ यू विल फॉलो दैट यू विल नेवर फेस द इशू ऑफ पेपर कंप्लीशन, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज मेंस में इशू ये नहीं होता कि आपके पास कंटेंट नहीं है, मेंस में इशू ये होता है काफ़ी बार यू डोंट हैव टाइम टू राइट व्हाट यू नो, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू यूज योर नॉलेज। देन डूज क्या करने हैं इन द लास्ट फेज? एटलीस्ट 3 मॉक पेपर्स आपको देने एवरी वीक विथ प्रॉपर ब्रेक शेड्यूल। यू कैन फॉलो द शेड्यूल ऑफ UPSC। जैसे ऐसे पेपर आपने आज दिया, देन GS1 एंड 2 एंड देन GS3 एंड 4। तो UPSC टाइमिंग की आप रिहर्सल कर सकते हो। ऐसा अगर आप 2 बार भी कर लोगे, दैट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अलॉट। फाइनलाइज GS टेम्पलेट फॉर इंट्रो कंक्लूजन पर थीम। अब तक आपके इंट्रो कंक्लूजन शुड बी रेडी, ताकि यू डोंट हैव टू थिंक अलॉट फॉर राइटिंग इंट्रो एंड कंक्लूजन। देन विजुअलाइज एंड मेंटली रिहर्स एग्जाम होल माइंडसेट। एग्जाम में आप किस तरीके से बिहेव करोगे, किस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, हाउ यू वुड बी स्टार्टिंग योर पेपर, हाउ यू वुड बी राइटिंग इंट्रो, कंक्लूजन, आंसर्स। ओके, देन IS गंगा लास्ट मिनट चेकलिस्ट, ये भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल इन द लास्ट वीक, कि आपको क्या क्या चेकलिस्ट रखनी है फॉर योर मेंस एग्जाम, so that you don't miss out on anything which is important for your mains exam. And also फ्लैश कार्ड्स भी आपको यूज कर सकते हो अगर आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं तो। What you need not to do, you should avoid panicking over unprepared topics. Your focus should be on precision, not perfection. Perfection कभी नहीं आने वाला है, तो जो आपको आता है वो कितने प्रिसाइज वे में आप यूज कर पा रहे हो, दैट वुड मैटर द मोस्ट। आपको नए आंसर राइटिंग फॉर्मेट, टोन्स, इनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने अब तक जो अपना आंसर राइटिंग टेम्पलेट बनाया है, लर्निंग फ्रॉम टॉपर कॉपीज, एडजस्टिंग इट एज पर योर स्टाइल, उसी से स्टिक करना है। एंड डोंट कंपेयर योर टेस्ट मार्क्स, यू जस्ट नीड टू एनालाइज, यू नीड नॉट टू कंपेयर इट। ठीक है, अपने एनालिसिस करो और उसको इंप्रूव करो। ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट टिप्स फॉर 75 डेज विंडो, आपको PYQs प्रायोरिटाइज करने हैं। रिपीटेड PYQs के बेसिस पे जो रिपीटेड थीम्स है उनके रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है,
देन यू नीड टू क्रिएट वन पेजर नोट्स स्पेशली फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पीवाईक्यू थीम्स। एक ही पेज पे आपके कंसेप्ट, डायग्राम, डेटा, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स, वो सबका आपको कलेक्शन बनाना है। एंड कोशिश करो योर ऑप्शनल शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऐसे जीएस फॉर एन इंटरव्यू, स्पेशली फॉर योर पीएसआईआर ऑप्शनल है, अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, एंथ्रो है, तो इनके एटलीस्ट जो जनरल कीवर्ड्स है, एग्जाम्पल्स है, यू कैन आल्सो यूज देम इन ऐसे जीएस4। ठीक है, बट हाँ, ज़्यादा टेक्निकल थिंकर्स को इस्तेमाल मत करना ऐसे में। यू कैन डू दैट इन जीएस4 बट नॉट इन ऐसे। ऐसे में आपको एग्जाम्पल यूज करने हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड यूज करने हैं फ्रॉम योर ऑप्शन। रिवाइज टेस्ट फीडबैक वीकली। अब जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, उसकी जो भी इवेल्युएटेड कॉपी आएगी, उसमें जो भी उन्होंने फीडबैक दिया है उसको आपको रिव्यू करना है रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, दे जस्ट सी दी मार्क्स एंड देन दे लीव इट, बट मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस की, टेस्ट में आपको क्या फीडबैक मिला एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको इंप्रूव करना है। ऐसे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो फर्स्टली आपको थीम बैंक बनाना है। इस जैसे जो डिफरेंट थीम्स हैं, वुमेन पे ऐसे आता है, टेक पे ऐसे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, एथिक्स पे, यानी कि फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, ये फिलोसॉफिकल ऐसे। तो इन सब पे आपको एक थीम बैंक बनाना है। इनमें आप कौन से एनेक्डोट्स, डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स, डायमेंशन, ये सब यूज़ करोगे, उनका आपको एक थीम बैंक बनाना है। क्योर डायरी आपको बनानी है, ये जितने भी फेमस स्कॉलर्स, थिंकर्स हैं, उनके क्योर्स आपके पास होने चाहिए। स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि इंट्रो में आप स्टोरी से स्टार्ट करोगे, कोई करंट अफेयर न्यूज़ से स्टार्ट करोगे, या किसी डेटा से स्टार्ट करोगे। बॉडी में एटलीस्ट 3 डायमेंशंस आपको देने हैं एंड देन फाइनली वे फॉरवर्ड। 3 डायमेंशन किस तरीके से आप दे सकते हो, पहला तो सपोर्टिंग द थीम, देन उसके काउंटर में, एंड देन सम एक्स्ट्रा डायमेंशन। डेली ड्रिल, ऐसे में आपको एटलीस्ट एक इंट्रो, एक कंक्लूजन और एक बॉडी पैराग्राफ डेली बेसिस पे आपको बॉडी पढ़नी है। एटलीस्ट एक ऐसे पढ़ लो इन टोटल, वहाँ से अगर हो सके तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, एक इंट्रो, वन कंक्लूजन एंड वन बॉडी पैराग्राफ से। थीम सिलेक्शन, आपके पास ओवरऑल एक थीम सिलेक्शन होना चाहिए कि पेपर में आप कौन से टॉपिक्स को, थीम्स को चूज करोगे, एंड दैट वुड कम फ्रॉम योर थीम बैंक। अगर किसी, जैसे वुमेन के लिए, इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग कंटेंट, if you have a strong theme bank for women, then you should choose women based theme in the actual paper and while writing essay test as well. डेली प्रैक्टिस, डेली बेसिक लेवल पे एटलीस्ट आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो। कोई ऐसे पीवाईक्यू का टॉपिक लो और उसका एक स्ट्रक्चर आप बनाओ कि व्हाट यू वुड बी राइटिंग इन द इंट्रो, इन द बॉडी, क्या डायमेंशन आप दोगे, उनमें क्या एग्जांपल्स होंगे, कौन से थिंकर्स का आप इस्तेमाल करोगे, कंक्लूजन में आप किस तरीके के पॉइंट दोगे, वेदर यू विल बी यूजिंग एनी पोएम और एनी करंट अफेयर बेस्ड न्यूज़ स्टोरी, उससे आप स्टार्ट करोगे या एंड करोगे। तो वो सारी चीज़ें आप एक डेली प्रिंट आप बना सकते हो एक ऐसे पे, टेकिंग इट फ्रॉम पीवाईक्यू। और अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक ऐसे फ्रॉम टॉपर कॉपी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, क्योट इंटीग्रेशन, दिस विल आल्सो यू विल लर्न इट फ्रॉम टॉपर कॉपीज। तो क्योट्स की डायरी होनी चाहिए आपकी, और उसको यूज़ कैसे करना है, दैट यू विल लर्न फ्रॉम टॉपर कॉपीज। और ये स्ट्रक्चर जो है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के, इसकी प्रैक्टिस के लिए तो ये यहीं से हो जाएगा जब ब्लूप्रिंट आप बनाओगे, बिकॉज ऐसे में लिखना इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट वंस यू हैव अ ब्लूप्रिंट while you are writing essay also. तो suppose if you have 1 hour 30 minute for writing essay, तो first 15 minutes should be used for creating the blueprint. इसके बाद में शॉर्ट नोट सिस्टम, दिस इज द नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर योर मेंस। आपका क्यों, क्योंकि जो आपका ये मटेरियल रहेगा शॉर्ट नोट्स, दैट वुड बी द मास्टर मटेरियल स्पेशली फॉर रिवीजन इन द लास्ट 7 days, कि वहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट नोट से रिवाइज कर पाओगे। एंड आपको करना क्या है, आपको एवरी चैप्टर या जो भी टॉपिक है आपका, उसको कंडेंस करना है 1 पेजर में, या आपको डिजिटल नोट बनाने हैं, शॉर्ट डिजिटल नोट्स। और अगर ये दोनों आपसे नहीं हो पा रहे हैं, देन यू कैन यूज़ कोचिंग नोट्स, समरी नोट्स फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग्स, वो आप यूज़ कर लो, बट यू शुड बी रेडी विद दी शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स। You can also use color coding technique like red color for static facts, blue color for case study, and green color for keywords data. Finally, 10 do's from my side. You should focus on writing, not reading, because writing is the main game of mains. You should also focus on time management. You should not only finish your answers well, you should finish them on time. तो टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, स्पेशली फॉर ऑल जीएस पेपर्स एज वेल एज योर ऑप्शनल। पीवाईक्यूज को रिवाइज करो, पीवाईक्यूज के टॉपिक आइडेंटिफाई करो, और जो टेस्ट में मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे लर्न करके उनको अवॉइड करो। एक इंट्रो कंक्लूजन बैंक बनाओ फॉर ऑल योर जीएस पेपर्स, ऐसे डिफरेंट थीम्स ऑफ ऐसे। एथिकल केस फ्रेमवर्क्स आप प्रैक्टिस करो, स्पेशली केस स्टडीज, और इसके लिए इफ़ यू फाइंड डिफिकल्टी यू कैन गो थ्रू पीवाईक्यू मॉडल आंसर्स ऑफ एथिक्स केस स्टडी। मैप, डेटा, क्योर्ट्स, इन सब का एक डेटा बैंक बनाओ, और यू कैन यूज़ रेडीमेड वैल्यू एडिशन नोट्स फ्रॉम कोचिंग। ट्राई टू सोल्व पेपर इन 2.5 आवर, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने 2.5 आवर की प्रैक्टिस करी तो 3 आवर में यू विल डेफिनेटली फिनिशिंग योर पेपर। एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इट पर्सनली। इनिशियली थोड़ा टफ रहता है, बट विद टाइम यू विल एडजस्ट एंड दिस वुड इंश्योर कि आपका पेपर कंप्लीट होगा इन द एक्चुअल एग्जाम।
And most importantly, don't miss out on essay and optional. This is your rank booster. GS में you will not be able to score beyond a point. GS 4 में तो फिर भी थोड़ा above average score आ जाता है, but बाकी 1 2 3 में you will not get you will not be able to create much difference. तो essay और optional ये जहाँ पे आप difference create कर सकते हो. Focus on that. Overall 75 days should build a system for you. ये जो मैंने फेज वाइज प्लानिंग दी है, पर्पज यही है कि आपका एक सिस्टम बने, एक स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन ना हो, एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हो. एंड फाइनली लास्ट IAS गंगा लास्ट वर्ड यही है कि 75 डेज में कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, क्लैरिटी पे फोकस करना है. क्लैरिटी वुड कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, दैट वुड कम फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस विच यू विल बी डूइंग बाय राइटिंग आंसर्स ऑन डेली बेसिस, रिवाइजिंग टॉपिक्स थ्रू टाइमर, एंड फाइनली कंप्लीशन, फिनिशिंग ऑल दी प्लान टास्क जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं. ओवरऑल बिल्ड योर सिस्टम, ट्रस्ट योर प्रोसेस, एंड लेट योर रिविजन डू द टॉकिंग इन द एग्जाम हॉल. आपको अब रिविजन पे फोकस करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करने पे फोकस करना है, एंड एवरीथिंग विल गो वेल इन द एग्जाम हॉल. बट द सक्सेस फॉर मेंस स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. आज आप क्या करते हो, दैट वुड मैटर द मोस्ट. And if you liked our content, you can connect with me on Telegram, website, as well as you can subscribe to this YouTube channel and share this video to your fellow friends who are appearing in Mains 2025. And all the best for your Mains preparation. A lot of content, high quality content, clarity giving content will come on this channel. So stay with me, join the revolution.